اسحاق ہم نے سیکھا کہ وہ مسیح یسوع کی تصویر پیش کرتا ہے جب وہ موریا کے پہاڑ پر قربان ہونے کے لیے مذبح پر لیٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ہمارا جو آج کا عنوان ہے بڑا دلچسپ ہے، اور آج کا سرمن ہم سب کے لیے ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک بہن ایک بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ سو آج کے کلام کا عنوان ہے ناکارہ خاندان میں خدا کا کام۔ ناکارہ سے مراد ڈس فنکشنل فیملی، وہ خاندان جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، وہ خاندان جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، اسے ہم ڈس فنکشنل، انگلش میں ڈس فنکشنل فیملی کہتے ہیں۔ سو اس کے لیے مجھے اردو زبان میں لفظ ناکارہ ملا۔ سو ناکارہ خاندان میں خدا کا کام۔ میرے عزیزو، خاندان خدا کی نظر میں نہایت اہم انسٹیٹیوشن ہے، اہم ادارہ ہے۔ خدا کی نظر میں خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بارہا کے بعد سیکھ چکے ہیں کہ خدا خاندانوں کو بچانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خدا کا فوکس خاندانوں کو محفوظ کرنے میں ہے، خاندانوں کو بچانے میں ہے، لیکن بدقسمتی سے خاندانوں کے خلاف بہت بڑی جنگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا خاندانوں کے خلاف بہت بڑی جنگ چل رہی۔ خاندان ہٹ لسٹ پر ہے ابلیس کی۔ ابلیس کی ہٹ لسٹ پر کون ہے؟ خاندان۔ کیوں؟ کیونکہ خاندان زمین پر خدا کی بادشاہت کی تصویر ہے، خاندان زمین پر خدا کی فطرت کا مظہر ہے، خاندان زمین پر آسمان کی بادشاہت کا، علم الہیات کا پرائمری اسکول ہے۔ زمین پر اگر ایک خاندان خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اس خاندان میں آپ کو آسمان کی بادشاہت نظر آئے گی۔ جب کوئی خاندان خدا خوف ہوتا ہے، جب پورا خاندان خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو وہ خاندان خدا کی شفقت، خدا کی محبت، خدا کی پاکیزگی، خدا کے جلال کو، خدا کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں نے کہا جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت اور علم الہیات کا پرائمری اسکول ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ خدا کے بارے میں سب سے بنیادی علم، بنیادی نالج اپنے خاندان سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کون ہے، اور خدا کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ عمرانیات اور علم الانسان کے جتنے طالب علم ہیں ان کا کہنا ہے کہ خاندان کا وجود ارتقاء کے عمل کی وجہ سے ہے، ایوولوشن کی وجہ سے۔ ایوولوشن تھیوری ہے سائنس میں کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، وہ پہلے ایک جانور تھا، جیسے ایک چھپکلی سے پھر کچھ اور وہ پروگریس کرتے کرتے ایک انسان بن گیا۔ یہ ایوولوشن تھیوری ہے، یہ ارتقاء کا نظریہ ہے لوگوں کا سائنس میں، اور ان کے مطابق پہلے خاندان کا وجود نہیں تھا۔ پھر جب جانوروں سے انسان بنا تو انسان جب رہتے تھے پھر انہوں نے ترقی کرتے کرتے یہ سوچا کہ ہمیں خاندان کو شکل دینی چاہیے، لیکن میرے عزیزوں یہ حقیقت نہیں ہے۔ خاندان خدا کی تخلیق ہے، خاندان خدا کا عظیم منصوبہ ہے، اور خاندان کو خدا نے باغ عدن میں سب سے پہلے خدا ہی نے پیدا کیا۔ یہ خدا کی تخلیق ہے، یہ کسی بھی ارتقاء کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی حادثاتی طور پر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا اور ان سے کیا کہا؟ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محفوظ کرو۔ سو خاندان کا پلان پہلے سے ہی خدا نے رکھا تھا، لیکن چونکہ لوگ اس بات کو اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہے، لوگ سائنسی تھیوری کی پیروی کر رہے ہیں، آج خاندان ناکارہ حالت میں، کیونکہ ان کو لگتا ہے خاندان خدا کا منصوبہ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ خاندان خدا کی تخلیق نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خاندان خدا کی وجہ سے وجود میں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا باغ عدن میں خدا نے سب سے پہلے خاندان کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے کہ خدا کوئی گورنمنٹ پیدا کرتا، اس سے پہلے کہ خدا کوئی بڑے بڑے ادارے پیدا کرتا، خدا نے سب سے پہلے خاندان کو پیدا کیا۔ اور خاندان ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی خاندان کی بنیاد ازدواج، میرج ہے، اور خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا یعنی شوہر اور بیوی کو رکھا تاکہ خاندان وجود میں ہے۔ خدا نے باغ عدن میں خاندان کو اس لیے وجود دیا تاکہ انسان کی گہری ترین نفسیات
नफ्सियाती, इखलाकी, रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन मैंने कहा कि खानदान के खिलाफ एक जंग चल रही है। किसी भी मुआशरे की जो इकाई है, यूनिट जो है, वो खानदान है। किसी भी मुआशरे की इकाई क्या है? खानदान है। और खानदान की बुनियाद अज़दवाज है, मैरिज है, शोहर और बीवी है। सो इब्लीस को मसीही मुआशरे को तबाह करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अज़दवाज को खराब करता है, वो सिर्फ शोहर और बीवी को खराब करता है और उसका काम सर, उसके काम, उसके रास्ते सीधे। सिर्फ खानदान में अगर आप मेजोरिटी ऑफ पीपल को खड़ा करें, एक पूरी खानदान को आप खड़ा करें, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, सारा हो, और उसमें आप देखेंगे बुजुर्ग भी हों, छोटे बच्चे भी हों, तो आपको पता है इब्लीस सबसे ज्यादा किस पर अटैक करेगा? जोड़े पर, अज़दवाज पर। क्योंकि खानदान की बुनियाद कौन है? अज़दवाज है, शोहर और बीवी है। वो जोड़ा है जो पूरे खानदान को लीड करता है। सो इब्लीस उस मसीही मुआशरे को तबाह करने के लिए खानदान को तबाह करना चाहता है, और खानदान को तबाह करने के लिए वो अज़दवाज को तबाह करता है, वो शादीशुदा जिंदगी को तबाह करता है, ताकि खुदा के खिलाफ जो एक बड़ी जंग है उसको जीत सके। सो मैं बता रही हूँ कि खुदा के नजदीक अज़दवाज की बहुत बड़ी अहमियत है। फरहान साहब बाइबल कॉलेज में फैमिली की डॉक्ट्राइन पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन फैमिली पे, तो वो जब चीजें आकर मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बड़ी एम्पावरमेंट और ताकत मिलती है कि खुदा का कलाम मसीही जोड़े के लिए या अज़दवाज के लिए किस कदर वसी है और किस कदर खूबसूरत नजरिया रखता है। सो फरहान साहब ने ये फोकस किया है कि हम जब खानदानी तौर पर आपको विजिट करेंगे तो हम खानदान के बारे में सीखेंगे। खुदा का कलाम खानदानों के बारे में क्या रवैया रखता है, खुदा का कलाम खानदानों के बारे में क्या नजरिया रखता है, हम इस पर सीखेंगे। सो हम जब आपको विजिट करने आए तो हम मिलकर खानदान के बारे में सीखेंगे। सो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, उस पे खुदावंद के खादिम ही हमारी रहनुमाई करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी मुआशरे की इकाई खानदान है, और खानदान की बुनियाद क्या है? जोड़ा है, अज़दवाज है, मैरिज है। किसी भी खानदान को वजूद देने के लिए पहले शादी होती है, अज़दवाज कायम होता है, और इब्लीस इसी बुनियाद को खराब करने के मंसूबा जात बांधकर, मैंने कहा हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं, हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि इब्लीस किस कदर खानदानों के खिलाफ काम कर रहा है। वो 24/7 खानदानों पे काम कर रहा है, खानदानों को बिखेर रहा है, खानदानों में नाइत्तेफाकी, खानदानों में नफरत, खानदानों में गुस्सा, भुगत, हसद और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके वो खानदानों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। क्यों जुदा कर रहा है? ताकि मसीही मुआशरा तबाह हो जाए, और जब मसीही मुआशरा तबाह हो जाए तो कलीसिया का वजूद नहीं रहेगा, यीशु की दुल्हन का वजूद नहीं रहेगा। पिछले दिनों व्हाट्सएप पे हर दूसरे बंदे को एक ही मैसेज आ रहा था, बच्चे गवाह हो रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। और कुछ ही दिनों में पूरे पाकिस्तान में ये खबर आम हो गई। हर माँ को, हर बाप को, हर बड़े छोटे बच्चे को ये शाऊर आ गया कि हमने अब गली में नहीं जाना, अकेले नहीं खेलना, और हम लोग बड़ा एहतियात करते, सब पेरेंट्स ने बहुत एहतियात किया। मैं आपको बता दूं, इससे कहीं ज्यादा आज खानदानों को एहतियात करने की जरूरत है, इससे कहीं ज्यादा हमें संजीदा होने की जरूरत है कि ना सिर्फ इब्लीस हमारे बच्चों को, वो हमारे अज़दवाज को भी तबाह करने के डर में वो छीन लेना चाहता है खुदा के मकसद को एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी से। और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ेगा, हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, ये बाइबल का कल्चर नहीं, ये बाइबल के मुताबिक कल्चर नहीं है। हम बड़े सगीर से आया हुआ हिंदुओं का जो कल्चर है, हम मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी कर रहे हैं। रस्म रिवाज में, रहन सहन में, रिश्तों को निभाने में भी हम लोग उसी कल्चर की पैरवी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आपको मसीही खानदान बिखरे हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि मसीही जोड़ों को, मसीही खानदानों को खुदा की तालीम और खुदा के मकसद से कोई वाकफियत नहीं। सो आज हम ऐसे ही एक खानदान से अपनी हदायत के लिए कुछ हम बातें सीखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या मकसद रखता है, खुद खानदान की जिंदगी में क्या मकसद होता है। इसहाक की कहानी से हम सब वाकिफ हैं।
اگر آپ پیدائش اس کا 25واں 26واں اور 27واں باب پڑھیں تو آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی اس کہانی کے بارے میں. سو میں حوالے پڑھنے کی بجائے اورلی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بانٹوں گی تاکہ ہم شارٹ ٹائم میں زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں. سو اسحاق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسحاق معجزانہ طور پر پیدا ہوا. خدا نے ابراہم کو اولاد دی اور اسحاق جب پیدا ہوا اس کے بارے میں خدا نے آزمائش کی اور کہا کہ مجھے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دے. پھر جب اسحاق کے لیے الیعزر ایک بیوی لاتا ہے ربکا, جب ان کی شادی ہوتی ہے تو کئی سالوں بعد بھی اسحاق کے پاس اولاد نہیں ہوتی. پھر اسحاق اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کرتا ہے, خدا ان کو برکت دیتا ہے, لیکن ربکا کو اپنے پیٹ میں ایک مزاحمت فیل ہوتی ہے, ایک فائٹنگ پوزیشن, ایک احساس ہوتا ہے جیسے چیزیں میرے پیٹ میں نارمل نہیں. وہ خدا سے دعا کرتی ہے اور خدا اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ تیرے پیٹ میں جو جڑواں بیٹے ہیں ان میں سے جو چھوٹا ہے وہ بڑے پر حکومت کرے گا, یعنی جو پہلوٹے ہونے کا حق ہے وہ چھوٹے کے پاس ہوگا. اور پھر ان سے یعقوب اور عیساؤ پیدا ہوتے ہیں, اور جب یعقوب اور عیساؤ پیدا ہوتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی چیز اس خاندان میں جنم لیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسحاق عیساؤ سے پیار کرتا ہے اور ربکا اپنے بیٹے یعقوب سے پیار کرتے ہیں. یہ وہ پہلا اسٹیپ تھا جب خاندان بکھرنا شروع. آج بھی خاندانوں میں فیوریٹزم, ماں کا لاڈلا کوئی اور ہے, باپ کا لاڈلا کوئی اور ہے. میرے عزیزوں میں آپ کی چیز ایک سائیکالوجسٹ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, بلکہ ہمارے پاکستانی وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے ڈاکٹر جاوید اقبال, اور وہ کہہ رہے تھے ایک خاص عمر تک بچے کے لیے ماں اور باپ دو نہیں ایک ہوتے ہیں. عمر کے ایک خاص حصے تک بچے کے لیے جو اس کی ماں اور باپ ہے وہ کیا ہے, ایک ہے. وہ ان کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے, لیکن جب ماں کوئی بات کہتی ہے اور باپ اس پہ چلاتا ہے یا اسے ڈانٹتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا ماں کو مارتا ہے تو بچے کے لیے وہ ایک وجود دو بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہیں پہ بچے کی پرورش الٹ سمت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ اسے چیزوں کو بہتر اور مثبت طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے وہ بچہ چیزوں کو غلط طریقے سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. میرے چیزوں صرف بچے کے لیے ماں باپ ایک نہیں, میں آپ کو خدا کا نظریہ بتاؤں تو خدا کے لیے بھی ماں اور باپ ایک ہے. بائبل مقدس میں 4 دفعہ آپ کو حوالہ ملے گا کہ وہ کیا ہے, ایک جسم. وہ کیا ہے؟ سو خدا آپ کو کسی عمر کے خاص حصے میں نہیں, خدا آپ کو ازدواج میں داخل ہونے سے مرنے کے دم تک ایک ہی چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایک ہی ہوں, آپ کا مقصد ایک ہو, آپ کے کام ایک ہو, آپ کے موٹیوز ایک ہو, آپ کے کردار میں ہونے والی صفات بھی ایک ہو, تاکہ آپ خدا کے مقصد کو زمین پر پورا کر سکیں. لیکن اسحاق اور ربکا بڑا فرق طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے. اسحاق کو عیساؤ سے محبت تھی, اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ عیساؤ کو اس لیے پیار کرتا تھا کیونکہ عیساؤ اس کے لیے شکار کر کے لاتا اور اسے کھانا کھلاتا تھا. ربکا اپنے بیٹے یعقوب سے بہت پیار کرتی تھی, اور اسی سینیریو میں یعقوب چاہتا تھا کہ پہلوٹے ہونے کا حق مجھے ملے. دوسری جانب عیساؤ پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانتا ہے, وہ اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ پورا خاندان ڈس فنکشنل ہے, یہ پورا خاندان ناکارہ طور پر کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے کا پورا خاندان خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. میں نے کہا یہ پورا خاندان خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. اسحاق چاہتا ہے وہ عیساؤ کو پہلوٹے ہونے کا حق دے, ربکا چاہتی ہے یعقوب کو پہلوٹے ہونے کا حق ملے. اب یہ جو پہلوٹے ہونے کا حق ہے نا, اس کے پیچھے بڑی مسٹری ہے. پہلوٹے ہونے کے حق کے ساتھ ابراہم کی برکت کا تعلق تھا. وہ برکت, وہ وعدہ جو خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا کہ تیری نسل سے قومیں برکت پائیں گی, میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. سو جس کو پہلوٹے ہونے کا حق ملتا, ابراہم کی برکت اس میں ٹرانسفر ہوتی. اب دونوں اس چیز کے لیے اتاولے تھے کہ برکت میرے لاڈلے کو ملے. لیکن میرے عزیزوں آپ کو حیران کن چیز نظر آئے گی کہ یہ خاندان اپنے اپنے لاڈلے اور اپنی اپنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس خاندان کو خدا کی مرضی سے کوئی کنسرن نہیں, ان کے دل میں خدا کی مرضی کی کوئی خواہش نہیں ہے. سو آپ اس اسحاق کی کہانی میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے, ہمیں ایک ناکارہ خاندان نظر آتا ہے. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ناکارہ خاندان میں سب سے پہلے ہم لیڈر کی طرف چلتے ہیں, سربراہ کی طرف. اسحاق
जो खानदान का लीडर है, खानदान का सरबराह है। इसके लिए आप साइज में बाप की पहली 4 आयत पढ़ेंगे तो इसहाक के किरदार की तस्वीर आपको मिलेगी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि इसहाक एक सेंशुअल फादर है, वो एक नफ्स प्रस्त बाप है। लिखा है कि वो ईसाऊ को इसलिए पसंद करता था, क्यों? क्योंकि ईसाऊ उसके लिए शिकार करके लाता और उसे, आपको लगता है ये कोई वैलिड रीजन है अपने किसी एक बच्चे को पसंद करने के लिए, या खुदा के मंसूबे के खिलाफ जाने के लिए कोई बेहतर वजह है कि अगर महज आपका बच्चा आपको अच्छे खाने खिलाता है तो आप खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार हो जाए। इसहाक यहाँ पर अपने बेटे ईसाऊ को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो उसके जिस्मानी ख्वाहिश, उसकी जिस्मानी भूख को पूरा करता है। तो इसहाक क्या कहता है अपने बेटे को, जा मेरे लिए शिकार करके ला ताकि मैं खाऊं और फिर तुझे क्या दूं, बरकत दूं। ईसाऊ को कहता है जा शिकार करके ला, जैसे तू पहले मेरे लिए शिकार करके लाता है, शिकार करके ला, अच्छा लजीज मजेदार खाना मेरे लिए बना, फिर मैं खुश हूँ और फिर मैं तुझे बरकत दूं। ये लजीज और मजेदार और मनपसंद लफ्ज इस बाब में 20 दफा इस्तेमाल हुआ और इसहाक के लिए इस्तेमाल हुआ। एक बाप है, घर का सरबराह है, घर का लीडर है, लेकिन वो सिर्फ लजीज और पसंदीदा खाने के लिए खुदा के खिलाफ जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको उसकी जिस्मानी जो जरूरत है, जो उसका ख्याल है कि ये चीज बेहतर है, उसके लिए खुदा के मंसूबे के खिलाफ जा रहा है। एक सरबराह, एक लीडर जो खानदान का लीडर है, वो अपनी जिस्मानी सोच के लिए, अपने नफ्स परस्ती के पीछे खुदा के अजीम मंसूबे को खराब कर, तो ना सिर्फ खुदा के मंसूबे को बल्कि वो अपने खानदान को भी खराब कर। जितने भी वालिद हजरात यहाँ पर बैठे हैं, हमें आज सोचने की जरूरत है कि क्या मेरी कोई नफ्स परस्ती मेरे खानदान को खराब तो नहीं कर, क्या मेरा कोई गलत फैसला मेरे खानदान को तो नहीं खराब कर, क्या मेरी गलत चॉइसेस या मेरे चुनाव जो है, जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, क्या उससे मेरे खानदान को तो ठेस नहीं पहुंची? क्योंकि इसहाक ने ऐसा किया। इसहाक ने अपनी जिस्मानी, आपको पता है जो लोग नशा करते हैं वो अपने घर की सारी चीजें बेच देते हैं, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उनकी जरूरियात पूरी करनी है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि मुझे अपनी नशे की जो जरूरियात है उनको पूरा करना है। और ना सिर्फ नशा, बहुत सी ऐसी हमारी चॉइसेस हो सकती है, हमारे बहुत से ऐसे फैसले हो सकते हैं, हमारी अना, हमारी खुदगर्जी हो सकती है जिसके बाइस हम अपने पूरे खानदान को तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप रियलाइज करें, पिछले संडे हमने सीखा था इसहाक तो बड़ा फरमाबरदार था। इसहाक को जब अब्राहम ने कहा कि मैं तेरे हाथ बांध कर तुझे कुर्बान गाह पर लेटाता हूँ क्योंकि कुर्बान करना है, तो इसहाक ने तो कोई जिद नहीं की, इसहाक ने तो इनकार नहीं किया। कैसा मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी जवानी में खुदा का फरमाबरदार हो, उम्र के किसी हिस्से में जाके वो नाफरमान हो जाए? तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। जब हम खुदा की रफाकत में मुसलसल जिंदगी नहीं गुजारते, जब हम रूहानी मर्जी को छोड़ते हुए जिस्मानी मर्जी की पैरवी करते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी रफाकत खुदा से दूर कर लेते हैं, हम खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। और यहाँ पे इसहाक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसहाक जो खुदा का फरमाबरदार था, आज वो वैसा नहीं कर रहा था, आज वो उस तरह से जिंदगी नहीं गुजार रहा था, आज वो जिस्मानी तौर से फैसलों को ले रहा था, जिस्मानी तौर से चीजों को सोच रहा था। और मैं जितने भी वालिद साहिबान यहाँ पर बैठे, हमारे जितने नौजवान बेटे हैं, आप लोगों ने भी कभी वालिद बनना है फ्यूचर में, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप नफ्स परस्त बाप तो नहीं है? कहीं आप ऐसी चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे कि जिंदगी के एक हिस्से के बाद वो आपको फजूल लगे, आपको यूजलेस लगे, आपको वो चीजें ज्यादा फायदेमंद ना लगे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो जितने भी वाले साहिबान यहाँ बैठे, आज हम जितनी भी जिस्मानी और मादी चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो चीजें बहुत जल्द हमें फजूल लगने वाली, वो चीजें हमारे लिए बेफायदा हो। हमें इस नकारा खानदान में सरबरा जो है, बाप जो है, वो नफ्स परस्त नजर आता है। और ना सिर्फ बाप बल्कि माँ की तरफ अगर हम देखें तो हमें स्कीमिंग मदर नजर आती है, वो हमें एक साजिश करने वाली माँ के तौर पर नजर आती है।
यहाँ पर वो कान लगा कर सुनती है कि इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से क्या कह रहा है। जब वो सारी बातें सुनती है तो जाकर फौरन से तरकीबें बनाती है कि अब मुझे चीजें कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है। वो अपने बेटे याकूब को बुलाती है, उसे कहती है मुझे पता है मैंने चीजों को कहा। वो कहता है माँ मेरा जो भाई ईसाऊ है उसके जिस्म पर बाल है, उसकी बनावट ऐसी, वो कहती सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। वो क्या कहती है सारी चीजें। आपको यहाँ पे एक जोड़े में इसहाक और रिबका एक इज़्दिवाज में है, वो शोहर और बीवी हैं, लेकिन आपको उनके अंदर एक चीज नजर आ रही है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, उन दोनों के दरमियान बातचीत नहीं है कि खुदा का हमारी जिंदगी में क्या मकसद है, खुदा हमारे इन दोनों बेटों के लिए क्या मकसद रखता है। रिबका ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो जाकर अपने शोहर से ये बात करे कि खुदा बाप ने हमसे ये वादा किया है कि ये जो बरकत है ये ईसाऊ की नहीं ये याकूब की है। उसने ये बात जाकर अपने शोहर से की ही नहीं। आज भी बड़ी माएं तरकीबें लगाती है। अब देखिए इसहाक जैसा बाप अगर कहे कि रिबका तुझे कुछ नहीं पता मुझे सब पता, देखना मैं चीजें करता, तो फिर रिबका जैसी माएं उठ खड़ी होती हैं, फिर वो तरकीबें लगाती हैं, साजिश करती हैं और फिर भी मनवाती अपनी है। सो यहाँ पर रिबका हमें ऐसी माओं की तस्वीर पेश करती हैं जो साजिश और तरकीब करके अपनी मर्जी मनवाना चाहती है। आपको यहाँ पे रिबका और इसहाक में एक खला नजर आएगा। और मैं आपको बताऊं मियाँ और बीवी, शोहर और बीवी में जो खला है, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहते हैं अगर आपके पैरों पे स्वेलिंग है, आपको दिल का मसला है, हाथों पे स्वेलिंग है, जिगर का मसला है, ये है तो ये, वो डॉक्टर्स ऐसे सिम्टम्स बताते हैं ना हमें साइन कि आपके हाथों में अगर ऐसे है तो फिर आपको ये मसला है। मैं आपको बता दूं अगर शोहर और बीवी में खला है, शोहर और बीवी में नाइत्तेफाकी है, शोहर और बीवी में दूरी है, तो ये इस बात का निशान है कि उन दोनों की खुदा से भी दूरी है। उन दोनों की क्या है? खुदा से भी दूरी है। आपको पता है शोहर और बीवी इज़्दिवाज की बुनियाद रखने वाला कौन है? इसको कायम करने वाला कौन है? तो जब शोहर और बीवी में खुदा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये खुदा है, ये बीवी है, ये शोहर है। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है आपको पता वो कब कम होगा? जब ये इस जानी बढ़ना शुरू करें। आप देखें जैसे जैसे ये दोनों खुदा के करीब जाएंगे इन दोनों के दरमियान का फासला कम होता जाएगा। जो शोहर और बीवी खुदा के करीब नहीं है वो एक दूसरे के करीब भी नहीं है। क्योंकि इज़्दिवाज किसने बनाया? खुदा ने। जोड़ा किसने बनाया? खुदा के बगैर जोड़ा कैसे रहा? जब खुदा ही उस शादी में नहीं तो वो शादी कायम नहीं रह सकती। इसहाक और रिबका के दरमियान अब खुदा नहीं था, उनकी चॉइसेस, उनकी मर्जी, उनके इरादों के दरमियान अब खुदा नहीं था, खुदा की मर्जी नहीं थी। इसहाक अपनी मर्जी कर रहा था, रिबका अपनी मर्जी कर रही थी। मुझे याकूब को बरकत दिलानी है, वो कहता है मुझे ईसाऊ को बरकत देनी है। उन दोनों की इंटेंशन में आपको खुदा की मर्जी नजर नहीं है। जब उन दोनों के दरमियान खुदा नहीं, जैसे वो खुदा से दूर होते हैं वो एक दूसरे से भी दूर हो जाते हैं। आज खानदान इसीलिए परेशानी का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, बीमारियों का भी इसीलिए शिकार है क्योंकि वो एक दूसरे के करीब नहीं है। नफ्सियाती तौर पर आज खानदान तबाह है। क्यों? क्योंकि पहली बात वो किसके करीब नहीं है? तो जब वो खुदा के करीब नहीं तो वो एक दूसरे के भी करीब, क्योंकि खुदा ने तो कहा वो एक है, तो एक होने के लिए उसको किसके पास आने की जरूरत है? जितने भी जोड़े यहाँ पर बैठे, आज अगर आप खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी से पूरा करना चाहते हैं, आज अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा आइडियल जोड़ा बने, तो आपको खुदा के करीब आना, अपने आप को दोनों खुदा के करीब आना। ना सिर्फ ये, हमें एक और चीज रिबका के किरदार में नजर आती। रिबका जो है वो एक ताबेदार बीवी नहीं, रिबका अपने शोहर के ताबे नहीं है, सबमिसिव नहीं है। जब इसहाक ने कहा ईसाऊ से कि तू मेरे लिए शिकार करके ला, खाना बना कर मैं तुझे बरकत दूंगा, तो उसने अपने शोहर की बात में हाँ नहीं की, बल्कि उसने अपनी तरकीब सोची, उसने अपने इरादे बनाए, अपना प्लान बनाया ताकि वो अपने लाडले बेटे को बरकत दिला सके। रिबका हर सूरत में याकूब को बरकत दिलाना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसको बेईमानी का साथ देना पड़े।
वो चाहती थी याकूब को बरकत मिले। और यहाँ पर हमें इतना वाज़ह नहीं मिलता कि वो इसलिए याकूब को बरकत दिलाना चाहती थी क्योंकि खुदा की मर्जी थी। वाज़ह ये होता है वो इसलिए याकूब को बरकत दिलाना चाहती थी कि याकूब उसका लाडला था, वो याकूब से प्यार करती थी। मेरे जैसे हम अपनी औलाद से कितना भी प्यार करते। देखें इब्लीस जो है ना, वो हमसे अगर गलत चीज ना करवा सके तो वो ठीक चीज गलत तरीके से हमसे करवा। अगर इब्लीस हमसे गलत काम ना करवा सके तो वो ठीक चीज हमसे गलत तरीके से करवाता है, तो वो ठीक चीज भी हमारे लिए गलत साबित हो जाती है। और रिबका ने यही किया। जितनी माएँ यहाँ पर बैठी है मैं आज उनसे भी मतवज्जो होती हूँ। रिबका अपने बेटे याकूब से प्यार करती थी, हालांकि ईसाऊ भी उसी से ही पैदा हुआ। लेकिन आप देखें कि रिबका अपने बेटे याकूब से इतनी मोहब्बत करती है कि वो गलत तरीके से अपने बेटे याकूब को, अपने शोहर इसहाक को धोखा देकर याकूब को बरकत दिलवाती है। उसका नतीजा आप जानते हैं क्या होता है? वो उम्र भर याकूब को मिल नहीं सकती। उम्र भर याकूब को वो बेटा जिससे वो बहुत प्यार करती थी, वो बेटा जिसके बगैर शायद वो रह नहीं सकती थी, वो उसको उम्र भर मिल नहीं सकी। उसके बच्चों को नहीं अपनी गोद में बिठा सकी। जितनी माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे बरकत पाए, जितनी माएँ चाहती हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें, और वो चाहती है कि वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खो ना दें, तो उनसे दरखास्त नहीं है कि उनको खुदा के पास ले, उनको खुदा के पास ले आए ताकि वो आपके भी पास रहें और आसमानी बाप के पास भी रहें। तीसरा फर्ज जिस खानदान में मुझे नजर आता है, बचपन मेरे अब्बू का नाम भी याकूब था। सो मैंने तो बहुत ही बार सुना याकूब धोखेबाज। हमारे घर एक खादिम आते थे तो मेरे अब्बू को छेड़ते थे ये कह के, तो मैंने तो बहुत सुना कि याकूब का मतलब धोखेबाज। सो याकूब का किरदार हमें, जितने नौजवान लड़के बैठे हैं, क्योंकि हम खानदान पर सीख रहे हैं, तो अब हम पढ़ लेंगे नौजवान लड़के और लड़कियों की जानिब। क्या याकूब का ये रवैया ठीक था कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग बाप को धोखा देता? क्या ये ठीक था? हाँ, जाहिरी तौर पर याकूब और रिबका को लग रहा था हम ठीक कर रहे हैं। देखिए, याकूब खुदा से मोहब्बत करने वाला था, वो खुदा की बरकत चाहता था, वो पहलौठे होने का हक चाहता था। देखिए, वो हर तरह से कोशिश करता था कि बरकत मुझे मिल जाए। वो जब दाल बना रहा है, ईसाऊ भूखा आया घर में, शिकार करके थका हुआ है, तो वो से कहता है मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे दे। तो याकूब अपना मतलब निकालता है, जैसे कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो वो फौरन से ईसाऊ को कहता है मैं तुझे खाना दूंगा लेकिन पहले मुझे पहलौठे होने का हक। वो हर तरह से वो पहलौठे होने का हक चाहता है। हो सकता है याकूब के दिल में ये बात हो कि खुदा ने ये मुझे बरकत दी है, हो सकता है, लेकिन अगर ये बरकत खुदा ने याकूब को दे दी थी तो फिर याकूब को धोखा देने की क्या जरूरत है? बरकत ऑलरेडी याकूब की थी, बरकत तो खुदा ने याकूब को दे दी थी, तो फिर याकूब को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। बरकत कुछ भी होता हमें याकूब के पास ही थी। आज हमारी नौजवान नस्ल कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी करती, कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी करते। माँ बाप हमें पैसे ना दे, हम कोई नई कहानी घर में सुनाते, वो हो गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था, और फिर वो सारी कहानी झूठी और मन गढ़ंत होती है। हम अपने माँ बाप से पैसे तो निकलवा लेते हैं लेकिन वो तरीका ठीक नहीं। खुदा चाहता है कि नौजवान, देखें, हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि हम जो चीज हासिल करना चाह रहे हैं, अगर खुदा ने मेरे लिए रखी है, अगर वो खुदा ने मुझे ही दी है, तो फिर मुझे उसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। माजरत के साथ हम, हमारी नौजवान नस्ल, उनको लगता है कि जब तक मैंने इस चीज के लिए लड़ाई ना की, मैंने घर में ये ना किया, हाथ पे छुरियां ना मारी, मेरी इधर शादी नहीं होगी। भाई अगर खुदा ने आपके लिए वो बरकत रखी है, खुदा ने अगर आपके लिए वो पार्टनर रखा है, तो फिर आपको उसके लिए गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है। वो पार्टनर आपके पास खुद चल के आएगा क्योंकि खुदा ने आपके लिए डिसाइड किया। याकूब एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिस जंग के जीतने का ऐलान खुदा ने कर दिया था कि ये याकूब की है, फिर भी वो उसके लिए तवद कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से मुझे ये मिल जाए। मेरे दोस्तों, अगर इफिसियों के पहले बाप की 3री आयत पढ़े तो उसमें लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। मेरे लिए, आपके लिए, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए सारी बरकत आपके लिए। सो उन बरकत को हासिल करने के लिए गलत रास्ता हमें खुदा से दूर लेकर जा सकता है।
याकूब ने भी ऐसा ही किया। याकूब भी चाहता था हर तरह से मुझे बरकत मिले, हर तरह से मैं खुदा के मंसूबा का हिस्सा बनूं। चौथा किरदार हमें इस खानदान में मिलता है, इस डिसफंक्शनल फैमिली में, इस नकारा खानदान में चौथा किरदार जो हमें मिलता है वो है एक अफसोसनाक भाई। अब ईसाऊ शिकार करके लाता है, खाने पीने की चीजें बनाता है जो भी उसके बाप ने कही होती हैं, और जब वो बना कर लाता है तो अपने बाप के आगे रखता है और उससे कहता है कि ये खाओ। तो उसका बाप कहता है तुमसे पहले आकर कौन मुझसे वो बरकत ले गया, मैंने खाया और फिर मैंने उसको बरकत दी। ईसाऊ रोया, चिल्लाया, उसने बड़ा ज्यादा गुस्से का इजहार किया। लेकिन आपको पता है ईसाऊ के गुस्से का इजहार इसलिए नहीं था कि मैं वो बरकत नहीं ले सका, उसके गुस्से का इजहार इसलिए था कि मेरे पहलौठे होने का असर और रसूख मुझसे छीन गए। मेरा एक जो रोग था खानदान में कि मैं पहलौठा हूँ वो मुझसे छीन गए। ईसाऊ जिस्मानी और मादी चीजों की तलाश में था। ईसाऊ को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मैं खुदा के मंसूबा में हूँ या नहीं, उसको बस वो जो दुनियावी पहलौठे होने के हकूक थे उसको वो चाहिए थे, और जब वो नहीं मिले तो उसने दुख का और गुस्से का इजहार किया। सो देखें कि पूरे खानदान इसहाक, रिबका, ईसाऊ और याकूब खानदान के 4 अफराद हैं, और हमने बड़ी डिटेल में चारों की शख्सियत को परखा। तो आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये खानदान चारों के चारों अफराद खुदा के मंसूबे के खिलाफ जा रहे हैं। ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं? खुदा के मंसूबे के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि फिर एक ऐसा मकाम आता है जहाँ पे हमें बड़ी दिलचस्पी से एक बात सीखने को मिलती है कि ना सिर्फ हमें इस नकारा खानदान में खुदा का काम होता हुआ नजर आता है, हमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज इस खानदान में नजर आती है, और वो ये है कि हमें ईमानदार की दुरुस्तगी होती नजर आती है। कैसे? जब ईसाऊ आता है, घर आता है अपने बाप इसहाक के पास और उसे कहता है मुझे बरकत हो, तो लिखा है कि इसहाक बशिद्दत कांपने लगा। इसहाक खौफज़दा होता है, और ये वो लम्हा था जब इसहाक जान गया कि मैं गलत हूँ। ये वो लम्हा था उसने जाना कि याकूब मुझसे बरकत ले गया, और ये जाना उसने कि मैं खुदा के खिलाफ हूँ। उसने जाना कि मैं गलत सोच रहा था, उसने जाना कि मेरे फैसले गलत थे, उसने जाना कि मेरी चॉइसेस गलत थी, और वो काम सिर्फ इसलिए नहीं खौफ से काम नहीं उठा कि उसको ईसाऊ का डर था, बल्कि उसके दिल में खुदा का खौफ दिया। उसको रियलाइज हुआ कि मैंने पूरी उम्र ईसाऊ को मोहब्बत की क्योंकि मैं चाहता था ईसाऊ को बरकत मिले। मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पहला दर्जा नहीं दिया, मैंने किसी भी तरीके से खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं कि खुदा का मेरे खानदान के लिए क्या मंसूबा है। जब इसहाक को पता चला कि ईसाऊ अभी आ रहा है, अभी उसने खाना बनाया, तो उसको फौरन से रिमाइंडर हुआ। यहाँ पर एक ईमानदार की दुरुस्तगी होती नजर आती है, जहाँ पे इसहाक को एहसास हुआ कि मैं गलत। फिर उसने कहा बरकत तो तेरा भाई याकूब ले गया, अब उसी की। उसने क्या कहा? बरकत कौन ले गया? तेरा भाई याकूब ले गया। बरकत किसकी है? उसी की है, क्योंकि इसहाक जान गया कि मैं गलत ट्रैक पर था। इसहाक जो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, उसे यह एहसास हुआ कि आज मैं जिस्मानी तौर तरीके से सोच रहा था, मैं जिस्मानी लिहाज से चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर चल रहा था। मेरे जिसको अगर आज खानदान है बैठे हुए, अज़दवाज भी है, जोड़े भी हैं, मैं आपको एक चीज वाज़िया कर दूं, खुदा का कलाम चाहता है कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। अगर हम अपनी मर्जी से खुदा की मर्जी, अपनी जिंदगी से खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, अपने खानदान से खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर हमें पहला दर्जा खुदा की मर्जी को देना है। हमें खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना है, ताकि हम जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारे हवास हमारा साथ छोड़ देंगे, हमें गलत और सही में पहचान नहीं रही। आज मसीही मुआशरे में, पाकिस्तानी कलीसिया में ज्यादातर खानदान इसलिए डिसफंक्शनल है, इसलिए नाकारा है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा नहीं कर रहे। बीवी की अपनी मर्जी है, शोहर की अपनी मर्जी है, बच्चों की अपनी मर्जी है, और चूंकि हर खानदान में हर शख्स अपनी अपनी मर्जी करता है, तो वो खुदा की मर्जी को
भूल जाते हैं, वो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा नहीं कर पाते। आपको पता है इसहाक खुदा का वफादार था, लेकिन अब अपनी अना में और अपनी मर्जी में वो इतना खो गया कि उसके हवास ने उसका साथ न दिया। उसे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, उसके बावजूद वो 40 साल और जिंदा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि ये जो बकरी का गोश्त बना है, जो बकरे का गोश्त रिबका ने बनाया था, ये शिकार का गोश्त नहीं है, उसने खा लिया। उसे एहसास नहीं हुआ, उसे आवाज लगी कि ये याकूब की है, लेकिन फिर भी उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसको बरकत दे रहा हूँ। उसको टेस्ट नहीं समझ आया, उसको आवाज नहीं समझ आई, उसको देखने की तो पहले ही ऑलरेडी उसकी नजर जा चुकी थी, लेकिन उसके तमाम हवास अगर आप देखें तो उसके किसी भी हिस्स ने, उसकी किसी भी सेंस ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी नाफरमानी में इतना मगन हो चुका था कि वो समझ ही नहीं पाया कि चीजें कैसे हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इसहाक ने कुछ भी किया हो, रिबका ने कुछ भी किया हो, ईसाऊ और याकूब ने कुछ भी किया हो, हुआ वही जो खुदा की मर्जी। आज खुदा हमें भी डिसिप्लिन करना चाहता है, आज खुदा हमारे ईमान की दुरुस्तगी चाहता है। हो सकता है हम बहुत सी चीजों को सीख चुके हैं, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। बहुत सी बातों को हम जानते हैं वालिद साहिबान को पता है मैं घर का लीडर हूँ, मैं सरबराह हूँ, मेरे फैसले और मेरी चीजें मेरे खानदान पर असर पैदा करें। बीवी जानती है कि मेरा रवैया मेरे बच्चों और मेरे शौहर के लिए सेहतमंद नहीं होगा, उसके बावजूद लेकिन मैंने कहा आज खुदा जितनी माएँ और जितने बाप यहाँ पर बैठे हैं, जितने नौजवान बेटे और बेटियां बैठे हैं, खुदा आज हमारे ईमान की दुरुस्तगी चाहते हैं। खुदा चाहता है कि हम इसहाक की तरह होश में रहें, हम रियलाइज करें कि हम खानदानी तौर पर खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। आखिर में हम तीसरी चीज और आखिरी चीज जो सीखते हैं, खुदा की हाकिमियत। खुदा सुप्रीम पावर है, खुदा हाकिम है, खुदा सॉवरेन है, खुदा के पास सारे इख्तियारात हैं, और खुदा ने जो अजीम नजात का मंसूबा बनाया है, दुनिया की कोई ताकत उस मंसूबे को रोक नहीं सकती। अगर हम साल 19 बात 21 में आयत पढ़े तो उसमें लिखा आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा कायम रहेगा। ज़बूर 33 उसकी 10वीं आयत, खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबे को नाचीज बना देता है। क्योंकि मैंने कहा खुदा की हाकमियत हम देखते हैं इस पूरी कहानी में, इस खानदान की कहानी में हम खुदा की हाकमियत, खुदा की मर्जी और खुदा के मंसूबे को पूरा होते हुए देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसहाक का नफ्स प्रस्त होना ठीक था? रिबका का साजिशी और तरकीबी होना ठीक था? याकूब का धोखेबाज होना ठीक था? ईसाऊ का मादी चीजों के पीछे भागना क्या ठीक था? ये पूरा खानदान चीजों में ठीक नहीं था, ये पूरा खानदान अपनी मर्जी से चल रहा था, लेकिन इस पूरे खानदान के नकारा होने के बावजूद खुदा का मंसूबा अपने ट्रैक पर चल रहा, खुदा का मंसूबा अपने ट्रैक पर चल रहा था। चीजें आज भी वैसी हो रही थी जैसी खुदा की मर्जी थी और खुदा का मकसद पूरा था। मेरे चीजों में आपको एक चीज बता दूं, फरिश्ता ने मरियम से कहा कि जो कौल खुदा के मुंह से निकला है वो हरगिज बेतासीर न हो। आज जितने भी इसहाक बैठे हैं वो जो मर्जी करें, जितने भी रिबकाएं बैठी हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, जो मंसूबा मेरे और आपके आसमानी बाप ने बना दिया है, जिसको उसने बुनियाद रख दिया है, वो मंसूबा आखिर को पूरा होकर रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा हाकिमियत वाला खुदा, वो सॉवरेन गॉड है, अथॉरिटी आज भी उसके पास है। खुदा का प्लान क्या था? अब्राहम से इसहाक को बरकत मिलेगी, इसहाक ने याकूब को बरकत दी, याकूब से यहूदा को, और यहूदा की नस्ल से हमें दाऊद नजर आता है, और दाऊद की नस्ल से मरियम और यूसुफ आते हैं, और मरियम और यूसुफ से मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु पैदा होता है। क्या रिबका, इसहाक, ईसाऊ और याकूब की नाअहली खुदा के मकसद को रोक सकती? लेकिन उनको जरूर रोक सकती। खुदा का मकसद नहीं होता, लेकिन रिबका और इसहाक जरूर खुदा की रास्तबाजी से हट गए, वो जरूर खुदा की फरमाबरदारी की लाइन से बाहर है, लेकिन खुदा का मंसूबा फिर भी वैसे ही काम। आज भी खुदा का मंसूबा है कि बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। अब यीशु आएगा, वो अपनी बादशाह को संभालेगा, सारी चीजों को करेगा, ताज मसीह यीशु को पहनाया जाएगा, और यीशु सारी जो सल्तनत है उसको अपने हाथ में लेगा। आपको पता आज लोग जितने मर्जी नाराज हो जाए,
آج لوگ جتنے مرضی گناہ کر لیں, ابلیس جتنی مرضی ٹرائز کر لے, جو خدا کی عظیم نجات کا منصوبہ ہے وہ اس کو ہرگز روک نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا خدا حاکم ہے اور خدا کی حاکمیت ہمیں اس خاندان میں پوری ہوتی نظر آتی. آخر میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو ناکارہ خاندان ہوتا ہے نا, جو ڈسفنکشنل فیملی ہوتی ہے, وہ ناکارہ اولاد پیدا کرتی ہے. جو خاندان خدا کے مطابق نہیں ہے, خاندان کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے خاندان کو باغ عدن میں بھی اسی لیے رکھا تھا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو, خدا کے لیے پاک لوگ پیدا ہو, خدا کے لیے نمائندے پیدا ہو زمین پر. آج بھی خاندان کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا ترس نسل پیدا کریں, ہم سے پیدا ہونے والی بیٹیاں اور بیٹے خدا ترس ہوں, خدا کے فرما بردار ہوں. لیکن اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہم ناکارہ خاندان ہیں, اور اگر ہم ناکارہ خاندان ہیں تو ہم سے ناکارہ اولاد پیدا ہوگی, اور جو لڑکے اور لڑکیاں, بیٹیاں اور بیٹے ہم سے پیدا ہوں گے وہ بھی آگے ناکارہ خاندان ہی بنائیں گے. دوسری چیز میں آپ کو واضح کر دوں, جو باپ ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, جو لیڈر ہے, اس کے فیصلے خاندان پر بہت اثر پیدا کرتے ہیں. اس کے فیصلوں سے خاندان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اس سے بڑی چیزیں خاندان میں بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسری چیز میں آپ کے ساتھ واضح کر دوں, خدا نے ماں اور باپ کے ہاتھ میں اپنے بچوں کے لیے برکت بھی رکھی ہے اور لعنت بھی رکھی ہے. جتنے ماں باپ یہاں پر بیٹھے, جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں, اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ خدا نے آپ کے ہاتھ میں آپ کی اولاد کے لیے برکت رکھی ہے. کیا آپ اپنے الفاظوں سے, اپنے رویوں سے اپنی اولاد کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو برکت دیتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کو آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ کے بچے جانیں کہ یہ میری فیملی, یہ میرا خاندان خدا کی بادشاہت کی تصویر ہے؟ آپ کے بچے آپ کے کردار سے خدا باپ کو جانیں. ایک دفعہ خدا کے خادم بتا رہے تھے, میں آؤٹ آف کنٹری پریچنگ کرنے گیا تو میں نے بتایا کہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ بالکل زمینی باپ کی طرح ہم سے محبت کرتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے. کہتے ایک لڑکی میرے پاس چلتی ہوئے کہتی, آپ خدا کو کچھ بھی بتائیں, خدا کو باپ نہ بتائیں. کیا کہتی, آپ خدا کو کسی بھی طریقے سے بتائیں لیکن باپ کے طریقے سے نہ بتائیں کہ خدا باپ ہے, کیونکہ میں نے تو اپنے باپ کو بہت برا. تو جتنے باپ ہیں وہ آسمانی باپ کی تصویر ہے. جتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ اپنے بچوں کو آسمانی باپ کی محبت سکھا سکتے ہیں اپنے رویے سے, اپنے کردار سے. اور جتنی مائیں ہیں وہ اس بات کو شور کر سکتی ہیں, اس بات کی یقین دہانی کر سکتی ہیں کہ جو آسمان کی بادشاہت خدا نے زمین پر رکھی ہے وہ اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہے. ہم جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کا خاندان میں کوئی بھی کردار ہے, آپ بیٹی ہیں, آپ بیٹا ہے, آپ بیوی ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ والدین ہیں, آج ہمیں اسحاق اور اس کے خاندان سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا. اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمیں اپنے خاندانوں میں آج سے خدا کی بادشاہت کو پورا کرنا ہے. خداوند آج کے پاکلام کے ذریعے ہم سب کو دیں. ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. ایک بار پھر بھرپور تالیاں بجائیں گے آج کے واقعی کلام کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں کو بند بھی کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے, اور جتنے یہاں پر آج اس زواجی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں سب اپنے لیے دعا کریں گے کہ خدا آپ سب کو ایسا بنائے جیسی خدا کی مرضی ہے. جتنے یہاں پر جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی آج اپنے لیے دعا کریں کہ جب وہ اس رشتے میں آگے بڑھے تو وہ خدا کو اپنے قریب پائے, وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلے. کیونکہ جب تک ہم اس رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے ہم خدا سے بھی دور رہیں گے. خدا عظیم یہوہ پاک خدا آسمان